A very pleasant morning to all the dear students of class 7. Today in this video we are going to start with a new chapter, that is the triangle and its properties. So you know that triangle is, as the name suggests, tri means three angles, that is angle. So a figure having three angles, or you can say that three-sided figure is called as a triangle. You know the basic parts of the triangle, that is sides, the vertices and angles of a triangle. Okay, this is something that you have learned in your 6th standard also, in the chapter that is your basic geometrical ideas. Okay, you have the basic idea for the triangle. Now in this chapter we are going to focus the more about the triangles. It means that from the basics we will move toward some properties of the triangle, some special properties that a triangle have. So let us start our new chapter with the definition of the triangle. So a triangle, a simple closed curve made up of three line segments. Okay, you know that if I draw a rough figure I am drawing here. So simple closed curve, you know that what is curve. Okay, in the earlier classes also I am repeating this. Curve is any shape, any figure that is made. Okay, and in the mathematics curve is curve can be also straight. Okay, so closed means complete closed है, covered है, simple है. It means वो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं ना. सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, तीन लाइन सेगमेंट से मिल करके एक आपका जो फिगर बना है दैट इज योर ट्राइंगल. और इसको पॉलीगन भी बोल सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीगन. पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड्स. ओके, सो थ्री साइड से मिलकर बना हुआ फिगर, थ्री साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन इज कॉल्ड एज ट्राइंगल. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल मीन्स टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल है ना, बेस्ड ऑन द साइड्स पर अगर बेस्ड हम क्लासिफिकेशन कंसिडर करें. सो यू नो दैट वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, triangle, this sign I am making for triangle. Equilateral triangle, you know that the triangle having all the three sides equal. Then isosceles triangle means the triangle in which two sides are equal. And scalene triangle, scalene triangle is that triangle in which none of the side is equal. कोई भी side equal नहीं है. That is your scalene triangle. This is the basic that you have known earlier. Based on the angles पर based अगर बात करें कि triangle एंगल्स पर बेस्ड उसका टाइप तो क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड. ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल इट मीन्स जिसमें सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे. एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ओके, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम. कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. राइट एंगल्ड ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक राइट एंगल होगा, मीन्स 90 डिग्री एंगल होगा, दैट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसा होगा फिगर दिखने में, है ना, लाइक दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करें तो अगर आपका समझ लीजिए ऐसा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये वाला आपका मोर देन 90 डिग्री है क्योंकि एंगल. दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो वो ऐसे होगा, इसमें तीनों के तीनों एंगल्स आपके एक्यूट हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. नाउ द मेन फोकस हियर दैट इन दिस सेक्शन इज आवर न्यू concept, new term, that is your median of a triangle. So understand the median of triangle. Median means mid. Median, as the name suggests, is mid of the line segment or mid of the side of a triangle. तो median कैसे form होती है? A line segment from a vertex of triangle joining the midpoint of opposite side is called median of the triangle. Okay, so that is your called as median of that triangle. Here you can see the figure of triangle ABC. You know that A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex. Basic definition of vertex is clear to you. I have told in earlier videos also. ओके, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर आप टर्म्स को ध्यान रखेंगे, उनके बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखेंगे, तभी आप डेफिनेशन को समझ पाएंगे कि वर्टेक्स क्या है, अपोजिट साइड क्या है, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है. सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल में हमने बोला लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल. जैसे मैंने ये वर्टेक्स ए कंसिडर किया, ठीक है, इस वर्टेक्स से ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ज्वाइन किया ऑफ अपोजिट साइड. अब इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड, अपोजिट मीन्स सामने वाली, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी. तो बीसी का मिड पॉइंट मैंने, मतलब अभी मैं रफली ले रही हूँ लेकिन एग्जैक्ट मिड पॉइंट हमने अगर कंसिडर किया और अपोजिट वर्टेक्स से उस लाइन को ज्वाइन, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज मीडियन. ठीक है, दिस इज योर मीडियन. लाइकवाइज बी वर्टेक्स से अगर मैंने AC का मिड पॉइंट, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो योर मीडियन,
है ना। और इसी तरीके से क्योंकि एक और मेरे पास वर्टेक्स बचता है, थर्ड वर्टेक्स सी, उससे अगर मैंने ए बी का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, देन दिस इज योर थर्ड मीडियन। ओके, सो बेसिकली इन अ ट्राइंगल वी कैन हैव थ्री मीडियंस हो सकती हैं एक ट्राइंगल में। थ्री मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल। ओके, क्योंकि थ्री वर्टेक्स हैं, थ्री अपोजिट साइड होंगी, तो ए वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया, दिस इज योर मीडियन। और मैं इसको मार्क कर सकती हूँ, लाइक आई कैन मार्क दिस पॉइंट एज डी, दिस पॉइंट ई, दिस पॉइंट एफ। तो आपका मीडियंस कौन सी हो गई है यहाँ पर, मतलब अगर मैं मीडियंस की मार्किंग देखूँ, मीडियंस डिनोट करूँ, तो यू कैन सी दैट ए डी इज़ अ मीडियन, और लाइन सेगमेंट है तो ऐसे डिनोट होगा। लाइकवाइज सी ई इज़ अ मीडियन एंड योर बी एफ इज़ अ मीडियन, है ना। So this is the concept of median. Median is the line joining from vertex to the midpoint of opposite side. That is your median. Please remember this. Okay. So next is your altitude. Altitude of a triangle. Altitude का basic मतलब होता है height. ठीक है, एल्टीट्यूड का बेसिक अगर सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बोले तो दैट इज़ योर हाइट। एंड यू नो दैट हाइट इज़ व्हाट, हाइट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब ये कि समझ लो, लेट अस सपोज, बिल्कुल रफली मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। रफली कंसिडर कीजिए कि आपके पास ये टू लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी, एक परपेंडिकुलर लाइन से देखूंगी, एक स्ट्रेट लाइन से देखूंगी, है ना। ये मेरे इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जो करेक्ट डिस्टेंस होगा, है ना। कभी भी मैं कोई इटैलिक, मतलब मैंने अगर स्लैंट लाइन, लाइक स्लैंट मीन्स थोड़ी टेढ़ी, ठीक है, स्लैंट बोलते हैं इसको। सो अगर मैंने ये स्लैंट लाइन ड्रॉ की ऐसे, और मैं इसको मेज़र करके ये कहने लगूँ कि मैं इससे डिस्टेंस देखूंगी, तो क्या इससे इनके बीच का डिस्टेंस करेक्ट पता चलेगा? मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इधर इटैलिक की है, थोड़ी सी और ऐसे करी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, थोड़ी और ऐसे करी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इनसे डिस्टेंस मुझे करेक्ट पता नहीं चलेगा। डिस्टेंस कैसे पता चलता है? परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है, हाइट से। तो this is what the concept. Now coming to the altitude. Altitude is the perpendicular line segment. Perpendicular, you know, perpendicular means that is making a 90-degree angle. That is called as perpendicular. Okay. So perpendicular line segment from a vertex of a triangle to its opposite side is called altitude of triangle. Same वही concept आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में बस। अब आपको वर्टेक्स से क्या करना है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उस लाइन की स्पेशलिटी क्या है कि वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड। मतलब ए से मैंने अगर परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री अगर ये डिस्टेंस ड्रॉ किया, मीन्स ये वो 90 डिग्री आपका एंगल बना और ये मैंने ड्रॉ किया, देन दिस ए डी इज कॉल्ड एज योर एल्टीट्यूड। जैसे आपके थ्री मीडियंस थे ट्राइंगल में, वैसे ही थ्री एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं, सी से ए बी पर, बी से ए सी पर, थ्री एल्टीट्यूड्स। ओके, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में ये डिफरेंस है। देखो ट्राइंगल दोनों आपको एक जैसे से ही दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यू कैन सी डी मिड पॉइंट था, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू डी सी हो गया आपका, ये वाला बी डी डी सी के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि डी मिड पॉइंट था, मीडियन था, ठीक। यहाँ पर आपका ए डी एल्टीट्यूड है, मिड पॉइंट नहीं है, मतलब बी डी डी सी के इक्वल नहीं हुआ। सिर्फ इतना है कि ए से आपने बी सी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, जो कि ए डी आपका समझ सकते हैं आप कि इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से बी सी का डिस्टेंस है। दिस ए डी है क्या, ये ए डी बी सी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है ए वर्टेक्स से, ठीक है ना। सो दिस इज योर हाइट, दिस इज योर एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड और मीडियन का बेसिक डिफरेंस आप हमेशा समझकर याद रखेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो इन द previous diagram you have seen that it was an acute angled triangle. Okay, all the angles were acute, and you have seen that the altitude was in the interior of the triangle. Okay, now I am taking another concept, that is your altitude of obtuse angled triangle. Obtuse angled means this angle is your obtuse angle, है ना, this is more than 90 degree and less than 180 degree, so this is your obtuse angle triangle. Now when you talk about the altitude of this triangle, so you know altitude का basic definition वही रहेगा कि आपको vertex से
अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो ए वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर डालूंगी, परपेंडिकुलर मीन्स स्ट्रेट लाइन एकदम 90 डिग्री, ठीक है। और BC तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही, तो मैं BC को एक्सटेंड कर लूँगी, BC को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। देन दिस विल बी योर एल्टीट्यूड, दिस विल बी योर एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है, ऐसे ही अगर आप C वर्टेक्स से डालेंगे ड्राइंग रफली, तो आपका यहाँ पर जाएगा वो, और आप इस A को इसको एक्सटेंड करेंगे, देन यू विल हैव दिस। सो दिस इज योर एल्टीट्यूड एंड so what I am saying was altitude of obtuse angle triangle lies outside the triangle, और ये आपका outside the triangle है, ठीक है। तो acute angle triangle का तो altitude आपका in the interior of the triangle था, लेकिन obtuse angle triangle का आपका altitude outside of triangle है। Now coming to the exercise 6.1, this is the concept only, and the 6.1 exercise is very much easier. You will do by yourself because I have told everything in the definition and the concept. So you can see here the question number 1 says, and also you will write down the complete all the questions and the answers, okay. So in the triangle PQR, D is the midpoint of QR, D is the midpoint of QR, it means QD is equals to DR, है ना। D midpoint है, it means PM लाइन सेगमेंट क्या है आपका, उन्होंने आपको दिखाया भी है, PM is 90 degree at 90 degree, so you can see that PM is your altitude, PM is, the answer is PM is altitude। And PD यू नो दैट P वर्टेक्स से D लाइन, PD एक लाइन सेगमेंट है जो कि D मिड पॉइंट है, क्योंकि स्पेशली, सो PD इज योर मीडियन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एज यू हैव अंडरस्टूड। इज QM इज इक्वल्स टू MR, अब उन्होंने पूछा QM क्या MR के इक्वल है, सो ऑब्वियसली नो, क्योंकि M मिड पॉइंट नहीं है, D मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, ABC आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, BE मीडियन ड्रॉ करेंगे उसमें। सो ऑब्वियसली आप जो BC अगर कोई भी लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो एट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यू विल मार्क द पॉइंट E एंड यू विल ड्रॉ द मीडियन, ओके। सो आपको ये खुद करना है। इन B पार्ट ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, यू विल ट्राई योरसेल्फ। इन द क्वेश्चन नंबर 2 C पार्ट, इन ट्रायंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, तो वो बिल्कुल आपका ऐसा बनेगा जैसे मैंने अभी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। So give a try to the exercise by yourself. In the case of doubt any in the any question, just let me know, okay. Then question number 3 is verify by diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. So let us see question number 3. So this is your isosceles triangle, okay, and they are saying that verify by diagram कि उसका median और altitude same होता है या नहीं। तो अगर ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब आप इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, बेसिकली हमेशा क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि ये वाला एल्टीट्यूड ड्रॉ करने पर हमेशा मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मीन्स मिड पॉइंट पर ही आता है, ठीक है। तो BD हमेशा DC के इक्वल होता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाली AB आपकी AC है, सो AB AC के इक्वल है। सो यू कैन से दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, है ना, एंड AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड। तो हमेशा ये होता है, प्रैक्टिकली यू कैन वेरीफाई दैट कि आपका AD इज एल्टीट्यूड एंड ऑल्सो BD इज इक्वल टू DC। जब आप एल्टीट्यूड डालेंगे ये, तो हमेशा BD इक्वल टू DC आएगा, देयरफॉर एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ an isosceles triangle is same, okay. So this can be verified by drawing practically the isosceles triangle जिसमें ABAC 2 equal sides हो और आप AD एक perpendicular draw करें, okay. So this is about your exercise 6.1. Now moving toward the next concept of this chapter, that is your exterior angle of a triangle and its properties. So let us understand that. So exterior angle of triangle, let us understand this, that when a side of triangle is extended, then the angle formed at outside is called as exterior angle, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए एक ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, और मैंने इस साइड BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया टूवर्ड्स द राइट साइड हेयर लाइक दिस, मैंने BC साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है।
ठीक। तो BC साइड को एक्सटेंड करने के बाद द एंगल फॉर्म्ड एट आउटसाइड एट दिस वर्टेक्स, दिस इज जिस वर्टेक्स से आपने एक्सटेंड किया है उस वर्टेक्स पर जो आउटसाइड में एंगल फॉर्म होगा, दैट इज़ योर कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल ऑन दिस वर्टेक्स C। ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। लाइकवाइज अगर आपने CA को ऐसे एक्सटेंड किया, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल। लाइकवाइज आपने CB को इधर की साइड एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल। सो बेसिकली 3 वर्टेक्स से आप 3 साइड्स को एक्सटेंड जब करते हैं, द आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज योर एक्सटीरियर एंगल। और किसी भी ट्राइंगल में क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, तो आपके 3 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो यू हैव गॉट 3 एक्सटीरियर एंगल in the triangle. Then next is your property of exterior angle, that is very important property. Whenever you talk about triangle, whenever you know about exterior angle in higher standard also, this is very important property. So each and every concept is very important for जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना होता है हमेशा, ताकि आप आगे की चीज़ों को समझ सकें। इसलिए क्लास 7 इन कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखना है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। दिस इज़ about understanding the concept, understanding the definition, understanding the chapter, okay, understanding the geometry. So please pay attention on that. So in that, this is the property, very special and good property of exterior angle. So क्या property है? An exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle. It means कि जो आपका ये exterior angle आपने form हुआ यहाँ पर ACD, ये इक्वल है टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल इसके पता है कौन से हैं? ये वाला जब एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट मतलब इस वाले को छोड़ करके बाकी जो 2 बचे वो अपोजिट में है। और इंटीरियर मतलब ये एंगल और ये एंगल जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये वाला रेड वाला एंगल इक्वल होता है सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हियर यू कैन सी द फिगर एंड यू कैन सी दैट आई हैव रिटन गिवन टू शो एंड प्रूफ। इट मीन्स मैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है? बेसिकली मुझे गिवन क्या है? गिवन है कंसीडर ट्रायंगल ABC। दिस इज द गिवन टू मी, दिस ABC ट्रायंगल मुझे गिवन था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा? एंड एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल। आप देख सकते हैं, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट विच एंगल इज ACD। ACD इट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, आई एम ड्राइंग विद पेंसिल, है ना। दिस कंप्लीट एंगल इज योर ACD एंड दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। मतलब ACD बेसिकली अभी आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि X + Y आपका ACD है। ठीक है ना। टू शो, मुझे शो क्या करना है? दैट मेजर ऑफ एंगल ACD, MACD लिखा है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B। मतलब A और B के समेशन के इक्वल है मेरा ACD। यही तो प्रूव करना है मुझे कि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के समेशन के इक्वल है ना। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका? पहले हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया? हमने CE पैरेलल ड्रॉ किया AB के। ठीक है, CE मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो AB के पैरेलल था, तो ड्रॉ CE पैरेलल टू AB। दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल, यू नो। ओके, सो मैंने ये ड्रॉ किया। अब मैं पैरेलल मैंने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि मैं पैरेलल लाइंस जो मैंने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो वाला यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, सो हेयर प्रूफ अब देखिए इसका। यू नो दैट AB इज पैरेलल टू CE, है ना, और आपका AC ट्रांसवर्सल है। आप फिगर में ध्यान से इसको रेफर करते रहिए। आई एम राइटिंग AC ट्रांसवर्सल है, तो आपको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल X है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और X। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 ये है आपका, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल Y है, क्योंकि एंगल 2 AB और CE पैरेलल है एंड BC इज ट्रांसवर्सल। सो यू विल राइट AB इज पैरेलल टू CE और BC ट्रांसवर्सल पर हम देखेंगे
BC ट्रांसवर्सल को जब हम कंसीडर करेंगे वी गेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y, दैट इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो आपने देखा कि ये इक्वल था, ये 1 x के इक्वल हुआ और 2 y के इक्वल हुआ. अब ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 के साथ. इट मीन्स इक्वल टू के LHS में जो है वो एक साथ ऐड होगा. एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक साथ ऐड हुआ, इक्वल्स 2 आ गया. इधर जो राइट हैंड साइड में वो एक साथ ऐड होगा, एंगल x प्लस एंगल y. ठीक है, इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस एंगल y. क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ ACD. और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल A है और एंगल B है. तो एंगल A प्लस एंगल B आपका इक्वल आ गया ACD के. सो ये आप देख सकते हैं दैट this exterior angle is proved equal to the opposite interior angle. So this is the proof कि हमने कैसे prove किया, and this is the property. So let us move to the exercise 6.2. After that this we have exercise 6.2 which is based on the exterior angle property, and it is a simple exercise. I am taking a question. Apart from both the questions, two questions are there. Find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams. तो सभी के सभी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं और फिर आपको जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही दूसरे पार्ट सभी सॉल्व होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. तो कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है. सो लेट अस सी द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका अकॉर्डिंग टू द फिगर द x इज योर एक्सटीरियर एंगल और 50 एंड 70 डिग्री आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल है. तो हेयर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बस आपको ये मेंशन करना है, लेकिन ये ज़रूर मेंशन करना है. इससे आपको ये पता चलता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. सो x इज इक्वल्स टू योर 50 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. लाइकवाइज अदर पार्ट सॉल्व होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करना है और आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दैट 115 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 50 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है और ये इक्वेशन है, x आपका वेरिएबल है, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 115 इधर 50 है ना, उधर माइनस में चला जाएगा एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू x is equals to 65 degree. Okay, so you will get x is equals to 65 degree, that is opposite interior angle is your 65 degree. Likewise you can do other parts also. So this is exercise 6.2. do give a try by yourself to both the exercises, understand the concept, and this is all for today's video. Thank you class for watching the video. Just complete your work. In the case of doubt, just let me know, and stay happy and stay safe at home. Thank you class.